السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کفایت اللہ ثناء علی صاحب بول رہے ہیں؟ نہیں اچھا، تو کفایت اللہ صاحب بول رہے ہیں کیا؟ ہاں اس میں تو لکھا ہے کفایت اللہ ثناء علی۔ تو لکھ دیا ہوگا، میرا نام کفایت اللہ ہے۔ اچھا، کفایت اللہ خالی ہے، ثناء علی نہیں ہے؟ نہیں، اچھا، وہ دانش علوی صاحب نے آپ کا نمبر دیا ہے۔ کیا کام ہے؟ وہ کچھ جانکاری چاہیے تھا دین بولیے۔ کے سلسلے میں۔ یہ جانکاری چاہیے اچھا تھا ایک کہ منٹ لائن پہ رہیے گا، ایک منٹ لائن پہ رہیے گا۔ جی ایک آدمی کا فون آ رہا ہے، بس 10 سیکنڈ دیجیے۔ ہاں بولیے۔ ہاں جی، یہ جانکاری چاہیے تھا کہ امام کے پیچھے امام جب قرات کر رہا ہو تو مقتدی کو قرات کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیے، طریقہ اسلام میں تو طریقہ یہ ہے کہ امام جو ہے نا نماز کے دوران 2 مرتبہ سجدہ کرے، 2 مرتبہ سجدہ کرے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ، نماز کے دوران 2 مرتبہ سجدہ کرے۔ سجدہ مطلب یہ ہے کہ مطلب نماز پڑھانے کے میں دوران سکتا نہیں پوچھ رہا ہوں، سکتا نہیں پوچھ رہا ہوں، میں مقتدی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ تو وہی امام جب بتا رہا قرات ہوں کر نا، رہا ہو تو مقتدی کو قرات کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ امام جب قرات کر رہا ہو نا، اگر وہ سجدہ نہ کرے، خاموش نہ رہے پوری نماز میں، 2 مرتبہ سجدہ کر کے نماز نہ پڑھوائے، تب مقتدی قرات کرنا چاہیے مقتدی کو۔ اچھا، مقتدی کو قرات کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر سجدہ کرے تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، جب سکتا کرے تو نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ تو یہ سجدہ میں کوئی پھر جو ہے مطلب اپنا سورہ فاتحہ پڑھ لے مقتدی۔ اگر سکتا نہیں کرے تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ سجدہ اگر نہیں کرے تو پڑھنا چاہیے امام کے پیچھے۔ اچھا، اور اگر سکتا نہیں کرے؟ نہیں کرے تو جب امام پڑھتا رہے تو اسی بیچ مقتدی بھی سورہ فاتحہ پڑھ لے۔ اگر سجدہ وہ امام کرے تو مقتدی جو ہے نا وہ سجدہ میں ہی پڑھے سورہ فاتحہ۔ تو سورہ فاتحہ مطلب نہیں بھی پڑھے اور پڑھے، میں کنفیوز ہوں، سمجھ نہیں پا رہا ہوں، مجھے صحیح طریقے سے بتائیے۔ مطلب دونوں کنڈیشن میں پڑھنا ہے۔ اچھا، وہی تو میں پوچھ رہا ہوں، ہر حال میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے نا؟ ہاں پڑھنا ہے۔ اس کی دلیل چاہیے تھا مجھے۔ یہ ہے نا اپنا یہ کیا بولتے ہیں حدیث، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے۔ بخاری شریف کی حدیث شاید آپ بتا رہے ہو؟ ہاں بخاری شریف سے۔ ہاں، لیکن اس میں مقتدی کا ذکر نہیں ہے، اور محدثین نے اس میں جو علامہ جوہری ہیں جو ان کے راوی ہیں کتاب کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلے پڑھنے والوں کے تعلق سے یہ حدیث ہے، جو بخاری میں راوی ہیں کس اسی نے کے، کہا؟ کہ یہ بخاری کے راوی ہیں جوہری امام زہری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور سفیان بن عیینہ، یہ سفیان بن عیینہ ہے پہلے نا، ایک، حدثنا سفیان، ہاں پہلے حدثنا ایک، سفیان نہیں، پہلے امام سفیان کا ایک قول لکھا ہے نا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ اکیلے نماز پڑھنے والوں اس کے کی لیے دلیل ہے۔ کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ جو بول رہے ہیں کہ زہری یا ہاں سفیان بن عیینہ نے کہا کہ اکیلے نماز پڑھنے والوں کے لیے، صحیح نا؟ ہاں ہاں، بالکل بالکل۔ ہاں تو اس کی دلیل ہونا چاہیے۔ میں آپ کو سنیے، اچھا یہ ہاں، اس کی بتائیے، دلیل ہے، سنیے، اس کی دلیل ہے سنن ابو داؤد میں ہے التمہید، نا؟ سنیے، التمہید ہے لما فی الموطا من المعانی والاسانید، اس میں لکھا ہوا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، قال سفیان لمن یصلی وحدہ، اس شخص کے لیے ہے جو اکیلے نماز پڑھے۔ اچھا ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا کہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ تابعی ہے یا تبع تابعی ہے؟ تابعی کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ جو ارے آپ میرے نے بھائی، حدیث میں بیان مان کی ہے۔ لیا آپ نے جو کہا نا کہ سفیان بن عیینہ نے کہا کہ اکیلے نماز پڑھنے والوں کے لیے، یہ میں نے مان لیا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ تابعین میں سے ہے یا تبع تابعین میں سے ہے؟
ताबईन तबे ताबईन का यहाँ मसला तो जब होता है मसला कि जब नहीं है, हम हमको पता है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। तबे ताबई है या ताबई है, आपको नहीं पता तो बता दीजिए नहीं पता। ये तबे ताबई है, ठीक है। अगर ये तबे जब ताबईन है, ये हाँ तबे ताबईन में से है। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है, तबे ताबईन। अगर अगर ये बताइए कि अगर जो है कोई सहाबा कुछ कहे कि ये चीज हराम है, अगर तबे ताबई कहे कि नहीं ये चीज हलाल है, तो आप सहाबा को मानिएगा या तबे ताबई को मानिएगा? तो साहबा कराम की भी हदीस है, वो कहते हैं ये हदीस से अरे ताल्लुक मैं ये क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, सहाबा को मानिएगा या उसको मानिएगा? सिर्फ हाँ या ना में जवाब दे दे। हाँ तो वही मैं बोल रहा हूँ, साहबा का मानेंगे चलो। सहाबा को मानिएगा ना। तो इस हदीस के जो रावी है सहाबी हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल है। और ये आदमी जो है ना, ये सहाबी जो है ना, नमाज के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे। तो तुम्हारा कौन सहाबी सुफियान रसूल? ये हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सहाबी रसूल है। ये नहीं नमाज तो के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे। तो तुम्हारे सुफियान बिन उयैना वाली बात जो है उसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि सहाबी की बात नहीं मानी जाएगी। नहीं तो सहाबी रसूल भी कह रहे हैं कि ये अकेले नमाज पढ़ने के ताल्लुक से ये कौन हदीस सा है, बताओ। साहब ये रसूल का है? बताओ ना, हाँ कौन सा साहब हाँ ये हाँ रसूल का है? बताओ। ठीक है, आप मैं पढ़ रहे दलील दे रहा हूँ। हैं। हजरत उबादा बिन सामित एक रज़ियल्लाहु मिनट ताला सुनिए अन्हु ना, इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने के बाद फरमाया कि इसमें जी हाँ, इसके बगैर नमाज मुक्तदी नहीं का होती। मुसन्नफ इब्ने इसमें अबी है, शैबा हदीस नंबर 3791 वो किताबुल पढ़ी, वो क़िरात मुझे में दलील देखी। दीजिए। हाँ मैं एक दे रहा हूँ मिनट, ना। एक मिनट। आप ये कह रहे हैं कि कौन से साहबी रसूल है, मैं साहबी रसूल का बता रहा हूँ ना। इमाम हाँ काला इमाम अहमद बिन हम्बल फहाजा रजुल मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु ताअला कौला नबी सल्लल्लाहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताबी अन हाजा इजा काना वादहु। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह। अरे मेरी बात तो सुनते नहीं, पूरी बात सुन लीजिए ना। अब जब ऐसे मसला थोड़ी होता है, नहीं अब इसका ऐसे जवाब नहीं भाई, दीजिए। मैं बोल रहा हूँ जब मेरा बात कंप्लीट हो जाए तब आप बोलिए। अभी मेरा बात अच्छा कंप्लीट चलिए, हुआ नहीं है। आप जो बोल रहे हैं सुना रहे पढ़ के, इस तरह पढ़ के सुना दीजिएगा, कहिएगा ये सहाबी का ये कॉल है वो कॉल है, तो मैं नहीं मानूंगा। अब मैं ये अरे कह रहा सुनन हूँ कि तिरमिजी में है, मानिए। सही सही सुनन तिरमिजी में है, जो अल्लामा हदीस अलबानी नंबर ने है, सही सुनन तिरमिजी लिखा है, उसमें है ये। हदीस नंबर बताइए ना सुनन तिरमिजी का, मैं अभी देखता हूँ ना इधर। हाँ हाँ बिल्कुल, 312 एक उससे मिनट नीचे रुको, है। एक मिनट जी रुको, 312 ठीक है। अभी देख रहा हूँ ना 312 में है कि नहीं, जो आप कह रहे हैं वो एक्चुअल में है कि नहीं। अरे मैं और साहबी रसूल से अरे बताता हूँ, आप एक बताइए तो ना। चेक कर लूँ पहले। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। 312 आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय लिख के भेजिएगा या सलाम लिख के भेजिए। अच्छा ये इसमें क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें? इमाम तिरमिजी मैं कहते हैं। मैं हदीस मैं इबारत पढ़ रहा हूँ। वह हाँ अम्मा पढ़िए अहमद सुनिए। बिन हम्बल फ़क़ाला माना कौल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला सलाता लिमन यक़रा बिफ़ातिहतिल किताबी इज़ काना वहदहु। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल का ये कौल कि सूरह फातिहा की नमाज नहीं होती, तो ये अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है। वह अच्छा तजब हदीस मैं जाबिर, थोड़ी आगे हुआ हूँ। पढ़ने दो, आगे पढ़ने दो, पूरी बात पढ़ने दो। वतजब हदीसी जाबिर बिन अब्दुल्लाह है तो काला मन सल्ला रकातन वो लम हदीस यक़रा फ़ीहा सही है। बिउम्मिल फलम यसिल इल्ला। फिर नीचे लिखते हैं कि वह असहाबुर रसूली फहाजा रजुल मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तअव्वला कौल नबी ला अरे सलात लिमन भाई लम मैं यक़रा मैं बिफ़ातिहतिल मुझे किताबी वेरीफाई करने अन्ना दो। हाजा इजा काना वहदहु। इमाम अहमद बिन हम्बल फिर फरमाते हैं कि ये सहाबी रसूल के, अल्लाह के रसूल के सहाबी हैं, मुझे जो वेरीफाई करने दे। इस हदीस का माना बताते हैं अरे कि मुझे ये। वेरीफाई करने दे, मैं इधर खोल के बैठा हूँ। आप जो पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में यहाँ पर है कि नहीं, मुझे चेक करने दे। यहाँ लिखा अच्छा है है भी इमाम। नहीं, हाँ मैं चेक कर है रहा भी हूँ ना नहीं। यहाँ, मैं चेक कर रहा हूँ ना, मुझे चेक तो करने दे। अरे चेक करो ना भाई, मेरे चेक करो, फिर मैंने मैं यहाँ भेजता हूँ लिखा यार। है, यहाँ लिखा है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं हदीस शुरू से पढ़ के सुनाता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नमाज से फारिग होने के बाद जिसमें आपने बुलंद आवाज से किरात की थी, तो फरमाया क्या तुम में से अभी किसी ने मेरे साथ किरात की है? एक शख्स ने अर्ज किया जी हाँ अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया तभी तो मैं ये कह रहा था कि आखिर क्या बात है कि कुरान की किरात में मेरी आवाज से आवाज टकरा जा रही है और मुझ पर गालिब की कोशिश की जा रही है। तो जोहरी उसका कहते समझ हैं पड़िए। तो जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी तो लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन नमाजों में क़ियास करने से रुक गए।
जिनमें आप बुलंद आवाज से किरात करते थे, ठीक है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि ये हदीस हसन है। इब्ने क़ैमा लैसी का नाम हमारा है, उन्हें अच्छा रुकिए, मैं आप जो कह रहे थे ना वो चीज़ इसमें है कि नहीं वो मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन उन लोगों ने ये दूसरी हदीस है। सुनिए, आपने कहा कि लोग किरात से रुक गए जिस वक्त उन लोगों ने उससे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दूसरी हदीस है। ये दूसरी हदीस है। ये जो आप बता रहे हैं कि उसमें रुक गए जिसमें नमाज अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, दूसरी हदीस है। अरे तो तुम्ही तो नंबर बताए हो 312, कौन सा? तुम्ही ना नंबर बताए हो तिरमिज़ी 312, तो इसमें वो चीज कहाँ है जो तो तुम अभी बचर कर रहे थे? उसके नीचे है। आप ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये हदीस अलग है। मैं भेज रहा हूँ, रुको, मैं भेज देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। उस बाब में मैं आपको भेज देता हूँ। एक मिनट ये चीज नहीं है जो उन लोगों के लिए रुकावट का सबब बने। अच्छा, ये बताइए, इमाम के पीछे किरात करने का, ये तो मेरी दलील है। एक मिनट, ये तो मेरी दलील, इसमें क्या लिखा हुआ है? कौन सी दलील आपकी है? ये कौन सी दलील? 312 जो आपने बताया ना, ये तो मेरी दलील है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है जो उन क्या लोगों लिखा के है? लिए, सुनो सुनो, बताइए। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं इस बाब में इब्ने मसूद, उमर बिन हुसैन और जाबिर बिन अब्दुल्लाह से भी रिवायत आई है। इस हदीस में ऐसी कोई चीज नहीं है जो उन लोगों के लिए रुकावट का सबब बने जिनके राय इमाम के पीछे भी किरात की है। ये तो मेरी दलील है यार। नहीं, क्या दलील है वो आप बताएंगे? सुनो यार मेरे भाई, आपको क्या दलील? क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं, बताओ। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं कि इस हदीस में ऐसी कोई दलील मौजूद नहीं है जो ये कहते हैं कि इमाम के पीछे किरात करो। ऐसी दलील नहीं मौजूद है। अब हमारी आपकी क्या बात हो रही थी कि साहबी रसूल का क्या मतलब है? ये साहबी रसूल का ना, तो अभी कहाँ आप भाग गए? हमने कहा कि इमाम अहमद बिन हम्बल दलील दिया ना, इमाम अहमद बिन हम्बल का, इसमें तो इमाम अहमद बिन हम्बल क्या फरमाते हैं कि ये साहबी रसूल का, ये उसको भेजो, मेरे व्हाट्सएप पे भेजो। तो ऐसा बोलो ना यार, फिर हीलाबाजी क्यों कर रहे हो? इतना हीलाबाजी क्यों कर रहे हो? सीधा सीधा ऐसा बोलो। हाँ, हीलाबाजी क्यों कर रहे हो? नहीं, हीलाबाजी क्यों कर रहे हो? जब ऐसा बोलो ना। बातें के बगैर नमाज नहीं होती। तफसीर ये की है कि ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो अकेले, अरे यहाँ तो है ना। हाँ रुको, तुमने जो मैंने भेजा सब अभी मिला। माशाअल्लाह अभी मिल गया ना। नंबर कहते हैं कि नबी करीम सहाबा में से एक शख्स है और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती की तफसीर ये की है कि ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो अकेले पढ़ रहा हो। इस के बावजूद अहमद बिन हम्बल ने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने ही को पसंद किया। अरे इमाम अहमद बिन हम्बल तो खुद अपने फतवे पे अमल नहीं किए। अरे कहाँ इमाम अहमद बिन हम्बल कह रहे हैं कि अकेले पढ़ने नमाज के लिए है, या अकेले नमाज पढ़ने वाला के लिए है? आगे क्या लिखा है? सबके बावजूद सुनो, मैं तुमको अभी समझा रहा हूँ ना। आगे क्या लिखा है? इन सब के बावजूद अहमद बिन हम्बल ने इमाम के पीछे सूरह फातिहा वो तुम्हारा अलिम कह रहा है, उससे छोड़ो। वो तुम्हारा अलिम कह रहा है जनाब, वो तुम्हारा अलिम कह रहा है, हम तुम्हारे अलिम की बात नहीं कर रहे हैं। वो छोड़ो। अरे आप ये देखो। नहीं, सुनो, ये ऐसा नहीं, घोटाला मत करो। ठीक है, ये अच्छी बात नहीं है। घोटाला करना ये अच्छी बात नहीं है। अरबी देखता हूँ। हाँ, अरबी पढ़ लो। ये घोटाला कर रहे हैं ना, अच्छी चीज नहीं है। क्या आप पढ़ो, ए भाई। लास्ट में पढ़ो, यहाँ अरबी में लिखा हुआ है, पढ़ो लास्ट में। हाँ, मैं पढ़ो। हाँ, लेमन यकरा बेफातिहतिल किताब अन्ना हाजा इज़ा काना वहदहु वख्तारा अहदु मा हाजल किरात खल्फल इमाम। फिर उसके बाद आगे क्या लिखा है? व अल्ला यतरुकल रजुलु फातिहतिल किताब व इन काना खल्फल इमाम। वो अन्ना कहाँ लिखा है? व अल्ला यतरुकल रजुलु फातिहतिल किताब व इन काना खल्फल इमाम। ये तो लिखा हुआ है अरबिक में। क्या लिखा है? तू बोल रहा है तुम्हारा आलिम की बात है, ये तो अरबिक में है, लिखा हुआ है। इमाम तिरमिज़ी की बात है ये। हाँ, क्या लिखा है? अरे पढ़ो ना, तुम तो, तुम्हारे पास नहीं है। हाँ, तो हमें सुनो, हमने पढ़ा। आपने कहा कि सहाबी रसूल से जो ये कौल है। अरे सुनो ना, मैं झूठ बोला। अभी सुनो ना, तुमने झूठ बोला।
तुमने झूठ बोला, ये तुमने झूठ। सुनो सुनो मेरे, अम्मा 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 अहमद बिन हम्बल फकाला माना कौलन नबी सल्लल्लाहु ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताबी इज काना वहदहु। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि इस हदीस का मतलब जिसने सूरह फातिहा नहीं उसकी नमाज नहीं, ये उसके लिए है जो अकेला नमाज पढ़ रहा है। ये इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है। और सुनो पूरी, अरे यार मेरी सुनो ना पूरी बात। आपने अरे सुन, अरे सुनना सुनना, हाँ तो सुनो सुनो और भी पढ़ो, सुनो आगे पढ़ो ना, सुनो और भी सुनो। तो काला अहमद बिन हब्बल फकाल फहाजा रजुल मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु ताअवला कौल नबी सल्लल्लाहु ला सलात लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताबी अनहाजा इनकान वदहु। ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं। अरे मुझे बोलने देना, आगे भी कुछ है। अरे हाँ मुझे पढ़ने तो दे पूरा भाई, क्यों डर रहा है इतना? मैं तुमको मौका दूंगा ना, मैं तुमको मौका दूंगा ना बोलने का। तो ये इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि सहाबी रसूल अब्दुल्ला जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं किसी, वो देखो यानी हदीस पढ़ना तुम्हारे यहाँ हंसी मजाक है, मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं। अरे तुम्हारे बात पर नहीं हंस रहा है, तुम पढ़ो ना। हाँ तुम्हारी मेरी बात पे मैं सहाबी रसूल का कौल पढ़ रहा हूँ तो तुमको हंसी आ रही है। तो अहमद बिन हम्बल कह रहे हैं कि इस हदीस का मतलब कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, उस शख्स के लिए है जो अकेला नमाज पढ़े। ये सहाबी रसूल फरमा रहे हैं। सहाबी रसूल, तुमने कहा ना सहाबी रसूल का माना ज्यादा माना जाएगा, तो यहाँ तो अरे ये हाजा रजुल मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असहाबिन नबी के असहाब में कौन है? असहाब के नबी कौन है? अरे सहाबी के नबी, सहाबुन नबी किसको कहते हैं? सहाबी नहीं होता वो। अरे क्यों मक्कारी कर रहा है कि नहीं है, पहले ये जान लो तुम। अहमद बिन हम्बल सहाबी थोड़ी है, ये तो ताबईन है। वो इमाम शाफई के शागिर्द है, तबे ताबईन इमाम शाफई के शागिर्द में से है, ठीक है? इमाम शाफई रहमतुल्लाह के शागिर्द में से है। तो तुमको इतना नहीं मालूमात है। मुझे जवाब देने दो इस बात का, तुमने जो बोला ना इतना कुछ, मुझे जवाब देने दो इस बात हाँ हाँ, ये सहाबी रसूल उस हदीस का माना बता रहे कि अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए। अब सहाबी रसूल की बात को, अब सहाबी रसूल की बात को छोड़कर अब तुम किसका मानता है? चल बताओ, मुझे जवाब तो देने दो, मुझे जवाब देने दो। आप खामोश ही रहना, खामोश रहना, ठीक है? दो मिनट की बात होगी, सुनो सुनो, दो मिनट की बात होगी, तुम 2 मिनट बोलो, मैं 2 मिनट बोलूंगा। नहीं नहीं 2 मिनट की, नहीं 2 मिनट की, तुम बहुत डिस्टर्ब करते हो। 2 मिनट नहीं, जब मैं बोलूंगा तुम खामोश रहना, जब तुम बोलोगे। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, 2 मिनट की बात होगी, 2 मिनट तुम बोल लो। ठीक है, नहीं शरारत पे ऐसा नहीं, तुम डिस्टर्ब करते हो। 2 मिनट तुम बोलो, अरे सुन ले, अरे एक आदमी को मुनाजरा करो, एक आदमी को नहीं 2 मिनट अभी तुम, हाँ तो मैं लाइन पे लेता हूँ दूसरे को, वो मेडिएटर रहेगा, खाली टाइमिंग बना। रुको मैं लाइन लेता हूँ, 1 मिनट। नहीं मैं लाइन पे लेता हूँ, रुको नहीं, ठीक है तुमने कहा ना, नहीं तो फिर नहीं टाइम टेबल टाइम टेबल नहीं टाइम टेबल 1 मिनिट टाइम टेबल 2 मिनिट। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्डवर ठेवला आहे, कृपया लाईनवरच रहा। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या हेलो अनिल भाई खैरियत? हमारे सामने के गैर मुकल्लिद साहब हैं किफायतुल्लाह, अच्छा जी। तो उनके दरमियान हमारे दरमियान बात हो रही है, तो 2 मिनट की टाइम आप देखो, वो बोलेंगे 2 मिनट और मैं सुनूंगा, 2 मिनट और 2 मिनट मैं बोलूंगा, वो सुनेंगे, बीच में मुदाखिलत नहीं करेंगे। अगर कोई मुदाखिलत करा तो उसकी शिकस्त मानी जाएगी। ठीक है किफायतुल्लाह साहब, इससे एग्री आप? शिकस्त का ये रूल होता है क्या? नहीं क्या हुआ, डर क्यों? रोल क्या होता है? शिकस्त का रोल नहीं है, ये सबब है, ये सबब है, इसका रोल नहीं होता, सबब है। ठीक है, मेरा टाइम स्टार्ट है ना। अब सुनो अब आप दावा पेश करो, किरत खलफल इमाम का हमारी बात हो रही है। अरे भाई पहले मुझे इसका जवाब देने दो, सुनो मेरी बात। सुनो, अरे तुम भागना मत,
भागना मत, अभी मुझे इसका जवाब दे रहा हूँ। जब तुमने कहा ना, तुमने झूठ बोला है जब सहाबी बहुत, यहाँ पर जब तुमने कहा ना तो मुझे इसका जवाब देने दे, फिर उसके बाद जो मैं दावा पेश करूँगा फिर तुम जवाब दावा पेश करना, फिर बात करना। शराय पहले तय कर लेते हैं ना, पहले मुझे जवाब देने दो, फिर शराब तय होगा, ठीक है? तुम 10 घंटा बोलो, मुझे दिक्कत नहीं है, मैं भागूंगा अरे नहीं यार मेरे दोस्त, भागूंगा नहीं, रुको। वो तुमने जो सवाल किया यहाँ पर, इसका जवाब देना मुझे, बस 1 मिनट नहीं लगेगा, मुझे बोलने तो दे। अब 2 घंटा 1-2 मिनट इनका टाइम हो रहा है, ये बोलने दो। हाँ ठीक, सुनो। पहली बात, इन्होंने एक सहाबी पर झूठ बोला, ठीक है, कि सहाबी का फतवा है, जबकि ये सहाबी का फतवा नहीं है, ये इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जमाना जो है इमाम तिरमिजी ने नहीं पाया। ये सनद ऐसी है मुनक़ते है कि ये ओरिजिनल में इमाम अहमद का कौल है भी कि नहीं, इसकी कोई दलील नहीं है, क्योंकि इमाम तिरमिजी ने कोई बगैर सनद के ये बात जिक्र किया है इमाम अहमद का, पहली बात। दूसरी बात ये है कि इमाम अहमद का जो फतवा है ना, ये अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है, तो इमाम अहमद ने खुद उस पर अमल नहीं किया। आगे लिखते हैं इमाम तिरमिजी, देखिए ना आगे यहाँ लिखते हैं इमाम तिरमिजी, रुकिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इमाम अहमद ने जब खुद उस अपने फतवे पर अमल नहीं किया तो वो फतवा का क्या वैल्यू है? 0 वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। और इमाम तिरमिजी कहते हैं कि इन सब के बावजूद अहमद बिन हम्बल ने इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने ही को पसंद किया है और कहा है कि आदमी सूरह फातिहा न छोड़े अगरचे इमाम के पीछे हो। इमाम अहमद तो खुद कह रहे कि सूरह फातिहा पढ़ो, और ये बंदा कह रहा है नहीं पढ़ो। पहली बात। दूसरी बात ये है कि इन्होंने कहा कि ये जो है ना सहाबी का कौल है, ये इन्होंने सहाबी पर झूठ बांधा, ये सहाबी का नहीं, इमाम अहमद का कौल है। और मैंने इनको यही हदीस से इसी हदीस का तसरीह पेश किया कि ये जो है ना हजरत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो हदीस है, ला सलात फातिहतुल किताब, उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद उस हदीस पर अमल कर रहे हैं। रावी हदीस का जो है ना, उस हदीस का तसरीह करना सबसे बेहतरीन तसरीह होता है। तो उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद जो है मतलब उस हदीस पर अमल कर रहे हैं। तो सहाबी के सामने अगर अहमद बिन हम्बल कह भी देना कि जो है मतलब अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए, तो उनका कोई वैल्यू नहीं अहमद बिन हम्बल का, क्योंकि सहाबी जब खुद वो कह रहे हैं सबके लिए। 2 मिनट आपका हो गया जनाब, 2 मिनट का आपका हो 2 मिनट हो भी गया। अच्छा हाँ, अच्छा, कभी से वो बोल रहे हैं, कभी आप खामोश रहिए, खामोश रहिए। अब अभी अच्छा 1 मिनट सुनो ना, मुझे भागना नहीं, लेकिन फोन काट गया। नहीं भाग नहीं रहा हूँ मैं, ये 10 सेकंड दो, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं फोन कर तो बात कर लेता हूँ। देखो भाग रहे हैं, देखो ये भाग नहीं रहा हूँ, 10 सेकंड तो बस। क्या कॉल मेरा भी आ रहा है, मैं नहीं उठा रहा हूँ, अभी बात करो, कॉल का छोड़ो, अभी दिन की बात कहाँ है बल्ला? अभी तुमने साबिर, अच्छा बोलो, मिल गया बोलो। तुमने एक बात कही कि जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु का, इसमें इमाम तिरमिजी में ये रिवायत नहीं है, ये झूठ बोला और उनसे कोई सनद नहीं है, जबकि इमाम तिरमिजी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से नकल कर रहे हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस नमाज के ताल्लुक से जो किसी सूरह फातिहा ना पढ़े नमाज नहीं होती, ये सहाबी रसूल का कौल है। ये कह रहे हैं कि अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है, और तुम कह रहे हो कि इसमें सहाबी रसूल का ये इसमें नहीं लिखा गया है। तो सबसे बड़ा झूठ तो तुम्हारी यही है, तुमने झूठ बोला, जबकि इसमें लिखा हुआ है। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं फ़हाजा रसूल मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि असहाब रसूल में एक आदमी फरमा रहे हैं, इस कौल का मतलब, ठीक है। और ये कह रहा है कि नहीं सहाबी रसूल का कौल इसमें नहीं है, तो ये झूठ बोल रहा है। दूसरा, जामे तिरमिजी में सनद के साथ लिखा हुआ है, सनद के साथ कहते हैं कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि जिसने एक रकात भी सूरह फातिहा की पढ़ी उसने नमाज नहीं पढ़ी, अलबत्ता इमाम के पीछे हो तो जायज़ है। ये हदीस हसन सही है। ये कौन फरमा रहे हैं? इमाम तिरमिजी। यक़ूल मन सल्ला रकातन सुम्मा यक़रा फ़ीहा बिउम्मुल क़ुरानी फलम यसी इल्ला यकुन वराअल इमाम फ़हाजा हदीसुन हसनुन सहीहुन। ये हदीस जो है जाबिर
इन अब्दुल्ला बिन जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, ये हदीस सुनन तिरमिजी में है। और इसी हदीस को अल्लामा अल-अल्बानी ने सही सिलसिलत हदीस जैफर में फरमाया है। कहता है वगैरह बेसनदी सही अजन अन जाबिर काला मन सल्ला रकातन लम फिया बे उम्मुल क़िरानी फलम यसिर इल्ला वराल इमामी, कि जो उम्मे हेलो भाग गया क्या? भाग गया किफायतुल्लाह साहब, कहाँ गए? अरे मैं हूँ भाई, बोलते जाओ, तुम्हारा पर टाइम पूरा हो जाएगा, बोलो। हाँ बोलते जाओ। ये इमाम तिरमिजी, इमाम अहमद बिन हंबल खुद नकल कर रहे हैं कि ये सहाबी रसूल में से हैं, कौन? जाबिर बिन अब्दुल्ला। और ये इस हदीस की माना ये बता रहे हैं कि ये अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है। जो सूरह फातिहा नहीं पढ़ा उसकी नमाज नहीं, इसका मतलब यह है कि जो अकेले नमाज पढ़े। इमाम तिरमिजी फरमा रहे हैं, और सनद के साथ भी उन्होंने ये बात फरमाई है, अपनी सनद के साथ भी ये बात फरमाई है। और ये जनाब कहते हैं कि उन्होंने नहीं फरमाई, झूठ बोल रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि रावी जो है हदीस के मुराद सबसे ज्यादा जानता है। तो ये तोहफतुल अहवदी है, ये अब्दुल रहमान मुबारकपुरी जो अहले हदीस के मुहद्दिस में से माने जाते हैं, वो खुद ये बात कहते हैं, अल हदीस अदरी बे मुरादिल हदीस मिन गैरिही। तो सुफियान बिन उयैना भी इस हदीस के जो रावी हैं खुद फरमाते हैं कि ये हदीस जो है अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरा, इसमें मुक्तदी का जिक्र नहीं है, बुखारी शरीफ की हदीस है। तो हमने इनका पूछा था कि भाई मुक्तदी इमाम के पीछे अगर किरत करे, जब इमाम किरत कर रहा हो तो उसकी नमाज है कि नहीं है? तो ये कहते हैं नहीं, नमाज नहीं होती, सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है मुक्तदी को। तो इस हदीस में मुक्तदी का जिक्र नहीं है, ना इमाम का जिक्र है। तो और ये हदीस जो है अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए है। ये तो हम तो इसी हदीस को करते हैं जब अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो ये किफायतुल्लाह सनाबली साहब ये बदहवास हो गए हैं, सहाबी रसूल का कौल नकल कर रहे हैं। तो ये अनाब शनाब बोल रहे हैं कि इसमें इमाम तिरमिजी ने झूठ बोला, इसमें सहाबी रसूल नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल ने झूठ बोला। हाँ, लाइन पे भाग गए? लाइन पे तो है ये, अच्छा लाइन पे तो है, हाँ, लेकिन ये आवाज नहीं आ रही है, ये असल में डरा हुआ है। तो इस हाँ, ये बेचारा डरा हुआ है, क्या करे? ये तो अपने दावे के खिलाफ दलील दे रहा है, जबकि हदीस। अरे भाई तुम्हारा 2 मिनट ये मेडिएटर जो है तुम्हारा, ये नाइंसाफी कर रहा है। तुम्हारा 2 मिनट नहीं पूरा क्या अभी तक? हो गया। हाँ 2 मिनट हो गया। अब मैं बोलूँ? हाँ, दूसरी बात ये, पहली बात ये कि ये जो इमाम तिरमिजी का इन्होंने हदीस नंबर 312 का रेफरेंस दिया है ना, ये बंदा उस बात को समझ ही नहीं पा रहा है वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अरे भाई वो कोई सहाबी का कौल नहीं है, मैं इसको पढ़ के सुना देता हूँ क्या लिखा है वहाँ पे। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से एक शख्स है, ठीक है। और उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती की तफसीर ये की है कि ये हुक्म उस शख्स के लिए है जो अकेले पढ़ रहा हो। उन सब के बावजूद इमाम अहमद बिन हंबल के सूरह फातिहा पढ़ने ही को पसंद किया। अच्छा, ये बंदा कह रहा है अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि सहाबा एक सहाबा है, वो तफसीर ये करते हैं कि मतलब एक सहाबा ने तफसीर की है कि ये जो है ना अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए। वो सहाबी कौन है? वो सहाबी का नाम बताओ। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह से सहाबी तक जो है ना सनद लेके आओ। कौन सा सहाबी है वो? मजहूल लोगों की बात नहीं मानी जाती। वो कौन सा सहाबी है? वो सहाबी का नाम बताओ जिन्होंने ये कहा है कि ये हदीस का वो मतलब है कि ये अकेले नमाज पढ़ने वाले के लिए। मैंने जो बताया ना, ये हदीस का वो मतलब है कि ये तमाम के लिए, सबके लिए, क्योंकि सहाबी खुद उस हदीस पर अमल कर रहे हैं। हजरत उबादा बिन सामित, मैं उसकी दलील दिया हूँ। यहाँ पे कोई दलील नहीं है कि कौन सहाबी कौन सा है। पहली बात। दूसरी बात, को अहमद बिन हंबल ने कोई सनद ही बयान नहीं की है। अहमद बिन हंबल ने रहमतुल्लाह अलैह ने वो कोई सहाबी का जमाना उन्होंने उनका जमाना पाया ही नहीं। तो ये जो है ना, ये बात का जवाब दे। दूसरी बात ये कि ये जाबिर बिन अब्दुल्ला की हदीस जो है ना रट्टू तोता की तरह रट रहे हैं। अरे भाई, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो खुद उस हदीस पर अमल नहीं किए है। जो हदीस 850 नंबर सुनन इब्न माजा में है
کہ ایک رکعت بھی نماز کسی کی نہیں ہوتی، لیکن امام کے پیچھے ہو. اتنی دیر میں بار بار کر رہے ہو، جب تمہارا ٹائم ہو گیا ہے تو بیچ سن میں لو، کیوں بول رہے ہو؟ بولنے دو، تمہاری بولنے دو. اپنے ٹائم پہ بولنا، اپنے ٹائم پہ بولنا، اپنے ٹائم پہ بولنا، 2 منٹ ہو گیا اپنے میرا، ٹائم پہ بولنا. ابھی 2 منٹ ہوا تھا، 2 منٹ ہوا تھا. ہو گیا جھوٹا ہو بچہ. گیا. 3 منٹ ہو رہا ہے، 3 منٹ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بولو بولو. جب تم کو ٹائم دیکھنے کا ڈھنگ نہیں ہے. دیکھو یہ بار بار جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ صحابی رسول نے نہیں کہا. کون سے صحابی رسول ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے، دیکھو میں پڑھ رہا ہوں. وہ اما احمد بن حنبل فقال مانا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن یقرأ بفاتحۃ الکتاب. آواز آ رہی ہے یار وہاں سے، دیکھو ذرا میوٹ کرو بھائی، میوٹ کرو ذرا. وہ اما احمد بن حنبل قال فقال مانا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب اذ کان بعدہ. امام احمد بن حنبل فرمایا کہ اللہ کے رسول کا اس قول جس نے نماز سورہ فاتحہ کے بغیر پڑھی وہ نہیں ہوئی تو اس کا معنی اکیلے نماز پڑھنے کے لیے. وہ تجب حدیث جابر بن عبداللہ، اسی حدیث سے جابر بن عبداللہ نے استدلال کیا ہے، احتجاج کیا ہے. حیث قال من صلی رکعۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یسی الا ان یکون ورا الامام. یہاں صاف صاف لکھا ہے کسی حدیث سے جابر بن عبداللہ جو ہے انہوں نے استدلال کیا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس میں نام ہی نہیں ہے. پھر آگے اسی حدیث کا اشارہ کر رہے ہیں امام احمد بن حنبل، کہتے ہیں فحاج رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جابر بن عبداللہ قول نبی اس کی تعویل کر رہے ہیں کہ جس کی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی نماز نہیں، یہ اکیلے نماز پڑھنے والوں کے لیے. دوسرا یہ جابر بن عبداللہ انہی یہ سنن ترمذی نے صحیح سند کے ساتھ ان کی حدیث لے کے آیا ہے. ہلو، سنن ترمذی کے یہ حدیث ہے. اس کا تمہارا ٹائم پورا ہو گیا بھائی، تمہارا ٹائم پورا ہو گیا. ارے خاموش رہو یار، نہیں ہوا. ٹائم پورا ہو گیا تمہارا. 2 منٹ ہو گیا. میڈیٹر بھائی 2 منٹ پورا کیوں نہیں کیا؟ حدثنا ٹائم پورا ہو گیا، میں ٹائم دیکھ رہا تھا. ٹائم پورا ہو گیا. ارے اٹھائیے اس کو اوپر. انہوں نے جابر بن عبداللہ سے، ارے بھائی وہ بولیں گے ٹائم پورا ہو گیا، ٹائم پورا ہو گیا بھائی. تمہارا ٹائم پورا ہو گیا. 2 منٹ اب مجھے بولنے دے. ارے تو وہ بولیں گے نا، مجھے بولنے کا ٹائم پورا ہو گیا تمہارا. ہاں تو وہ بولیں گے جب ٹائم ہو جائے گا تم بیچ میں ہی بولنے لگے. ٹائم ہو گیا تمہارا پورا. 3 منٹ تک بولے گا، ہم کو رکوا دیا بیچ میں. اب تم بھی خاموش رہا نا. کتنا بولے یار، کتنا بڑا مکار ہے. میں تو بہت کم سناتے ہیں جیسے مکار کے. بہت بڑا مکار ہے یار، یہ تو بہت بڑا مکار ہے. یہ دوسرے ارے وہ مکڑوں کھڑے جھوٹ کا بندہ جو ہے نا مقلد کرتے ہیں. میں خود مقلد سے حدیث بناؤ، تو ہم کو سکھائے گا بھائی. صاحب مجھے معلوم ہے تمہاری مقلد جو ہے نا جاہل ہوتا ہے، وہ ہم کو پتا ہے، وہ ہم کو مت سکھاؤ ٹھیک ہے. کس نے کہا مقلد جاہل ہوتا ہے؟ یار اجماع ہے اس پر کہ مقلد جاہل ہوتا ہے محدثین کا. اچھا محدثین نے کہا. ایک منٹ ارے رکو بھائی، بات کمپلیٹ کر لے، رک جا. کی باتوں کو مان کر تو خود جاہل ہو گیا. چلو ارے سن لے، پہلے بات کر لے، سورہ فاتحہ پر کمپلیٹ کر لے بات. ہاں چل بول جلدی. اس بندے کو یہی سمجھ میں جو ہے نا اصل میں نالج ہے نہیں، یہ ہے جاہل بندہ. تم جو ہے نا اپنے محدث کو لے کے آؤ تب ہم سے بات کر پائے گا. تمہاری بس کی بات نہیں ہے. سن میری بات میرے بھائی. امام احمد کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص ہے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہو. تو امام احمد جو کہہ رہے ہیں کہ ایک صحابی ہے، ایک صحابی کا ایک تفسیر ہے. ارے احمد بن حنبل نے صحابہ کو زمانہ نہیں پایا، صحابہ کا زمانہ. احمد بن حنبل نے نہ صحابی کا نام دیا ہے، نہ امام ترمذی نے. پہلا سند تو یہ چھوٹا ہوا یہ ایسے ہے کہ امام ترمذی نے کوئی سند بیان نہیں کیا احمد بن حنبل تک، کیونکہ امام ترمذی جو ہے وہ امام بخاری کے شاگرد ہے. انہوں نے کوئی سند ہی بیان نہیں کی ہے احمد بن حنبل تک. احمد بن حنبل کا زمانہ انہوں نے پایا ہی نہیں ہے. اب دوسری اس میں سند یہ ٹوٹا ہوا ہے کہ احمد بن حنبل نے کسی صحابہ کو دیکھا تک نہیں. انہوں نے بھی کوئی سند بیان نہیں کی، نہ کسی صحابی کا نام لیا انہوں نے.
तीसरी बात ये है कि अहमद बिन हम्बल खुद ही इस फतवे पर अमल नहीं करते, लास्ट में कहते कि अहमद बिन हम्बल खुद जो है ना सूरह फातिहा पढ़ते थे, खुद वो इस फतवे पर अमल नहीं कर रहे हैं, तो उनका फतवा का क्या वैल्यू। आगे बात ये है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला का जो रट्टू तोता के द्वारा रट रहा है ये हदीस 850 नंबर सुनन इब्ने माजा का है, जाकर सुनन इब्ने माजा 854 पर खोल ले, जाबिर बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु खुद इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ते थे, जाकर सनद खोल ले। तुम्हारा हो जब गया। उनका खुद हदीस को हो गया, अमल नहीं कर रहे हैं। अरे हो गया, आपका टाइम हो गया, बहुत टाइम हो बोलो गया। बोलो बोलो, मेरा टाइम हो गया, बोलो। अबे ये असल में किफ़ायतुल्लाह साहब की अरबी दानी और इनकी हदीसों का समझ सुन लीजिए। अभी मैं फिर बताता हूँ इसकी समझ क्या है। देखो, अहमद बिन हम्बल सुनन तिरमिजी की हदीस है, वो सनद के साथ ये हदीस भी बयान किए हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला की, कि वो इस हदीस अकेले वालों के लिए वो सनद भी बयान किए हैं। और इसमें इमाम अहमद बिन हम्बल क्या कह रहे हैं कि ये कौल कि अल्लाह के रसूल का फरमान कि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती, ये एक अकेला पढ़ने वालों के लिए है। और इसी हदीस से जाबिर बिन अब्दुल्ला ने दलील पकड़ी है। तो फिर कहते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल फहाजा रजुल, तो जो हाजा की जमीर है ये जाबिर बिन अब्दुल्ला की तरफ राजे होती है। इनको असल में अरबी इन लोग को पढ़ाते नहीं मदरसे में। तो हाजा रजुल मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रसूल के सहाबा में से एक आदमी है, यानी जाबिर। हाजा जो ऊपर जाबिर बिन अब्दुल्ला का कौल नकल किया है, तो हाजा से उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये अल्लाह के रसूल के कौल की तावील कर रहे हैं कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं, ये अकेला नमाज पढ़ने वालों के लिए है। हाजा से उसकी उन्होंने इशारा किया, तो इनको पता नहीं हाजा उलाय का ये सब चीज इसमें इशारा किस चीज की तरफ है। दूसरा, सुनन तिरमिजी जो है, इमाम सुनन तिरमिजी ये खुद हदीस बयान किए हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला की। हदसना इसाक बिन मूसा अंसारी हदसना मालिक अन अबी नुऐम और इब्न कैसान अन्नहु समिया जाबिर बिन अब्दुल्ला यक़ूल मन सल्ला। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला की हदीस नकल किए हैं कि जाबिर बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। तो इमाम के पीछे हो तो जायज है, अलबत्ता इमाम के पीछे हो तो जायज है, यानी वो भी इस हदीस को समझते हैं कि अकेले नमाज पढ़ने वालों के लिए। तो इन्होंने सनद भी बयान कर दी और ये कहते नहीं अब इमाम अहमद बिन हम्बल ने बगैर सनद बयान की है। तो ये इसको असल में इल्म नहीं है। इसी हदीस को अल्लामा अलबानी कहता है ये सनद सही है इसी हदीस को। और दूसरा मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में भी है, अन जाबिर काला ला तकरा खल्फल इमामी, हजरत जाबिर फरमाते हैं कि इमाम के पीछे किरत ना करो। हदसना वकी अनी ज़हाक अनी उस्मान अन अब्दुल्लाह बिन मिस्कम, यह भी सनद है। तो जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु सनद है। और देखो मुस्लिम शरीफ में, अरे वो बोलेंगे ना, तुम क्यों बोलना, तुम्हारे लिए तुम टाइम हो गया, जी नहीं है वो बोल रहा है, वो बोलेंगे अभी खामोश रहो। टाइम हो गया टाइम। मुस्लिम शरीफ में जाबिर जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इमाम के पीछे हरगिज़ किरत न करे। ये अरे यार, जैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि इमाम के पीछे किरत ना करे, ला किराता माल इमाम में फी सहीन। अरे टाइम हो गया भाई, तुम्हारा मीडिएटर भाग गया है लगता है। हमारा मीडिएटर नहीं भागता है, तुम भाग सकते हो नहीं। कहाँ गया पूछो ना, कहाँ है? हेलो, एक भी दलील नहीं दिया कि इमाम के अरे पीछे यार किरत करनी एक ही चाहिए, हदीस एक तो भी दलील तुम्हारे नहीं दिया ऐसा बंदे ने। खूटा गाड़ दिया, एक ही हदीस उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा है। दलील इसके पास एक नहीं है, हदीस ना सलाता लिमन लम यकरा बिफातिहतिल किताब वाली हदीस जो है ना, उससे पूरे मुकल्लिद जो है ना जड़ से खत्म होता है। दलील दो ये क्या दलील है? करना चाहिए, ये दलील दो इमाम को। अभी जो तुमने बकवास साफ किया है ना, उसका जवाब तो दे दूं। अस्तगफिरुल्लाह, हदीस पढ़ा हो बोलता बकवास। हाँ, तू अपना मन से बकवास साफ किया है, हदीस को बकवास उसकी बात नहीं बोल रहा, उससे पहले में बकवास किया तू। विक्टोरियन साहब इतना भी वो, अरे वो मुकल्लिद विक्टोरियन की औलाद है, हम नहीं है। मुझे जवाब देने दे, खामोश रह। यहाँ पे लिखा है फहाजा रजुलुन, इस बंदे ने, इस पर जो है ना वही नाजिल हुआ था। वहाजा रजुलुन से मुराद जो है ना जाबिर बिन अब्दुल्ला ले लिया। सुन लो इनकी बात, वही नाजिल हुआ था इन पर। इसमें सहाबी का नाम कहीं मेंशन ही नहीं है, कौन सा सहाबी है।
पहली बात। दूसरी बात, इमाम तिरमिजी ने अहमद बिन हम्बल तक कोई सनद बयान नहीं की है। ये बात तो ऐसी है, मुनक़ते वाली बात है। इमाम तिरमिजी से अहमद बिन हम्बल तक सनद लेके आ, पहली बात। दूसरी बात कि इमाम अहमद बिन हम्बल से लेकर सहाबी रसूल तक सनद लेके आ। और तीसरी बात ये कि वो सहाबी कौन है, वो नाम दिखा इधर। चौथी बात ये है कि इमाम अहमद अपने फतवे पर खुद अमल नहीं करते। जब वो अपने फतवे पर खुद अमल नहीं कर रहे हैं तो उनकी फतवा का क्या वैल्यू, उनका फतवा का कोई वैल्यू नहीं। लास्ट में वो खुद कहते हैं कि इन सब के बावजूद इमाम अहमद बिन हम्बल सूरह फातिहा इमाम के पीछे पढ़ते थे। फिर वो फतवा वो जो है ना खुद दे रहे हैं कि इमाम फातिहा पढ़ना चाहिए। यही तिरमिजी में यही तिरमिजी में लास्ट में लिखा हुआ। वो दलील यही अब यहाँ जो है वहाजा रजुलुन, यहाँ तक जो है फातिहतुल किताब इन्ना हाजा, यहाँ से पढ़ना अन्ना हाजा इज़ा काना वादहु व इस्तता अहमद माजा हाजल किरात खल्फल इमाम व ला यतरुक रजुलु फातिहतुल किताब व इन काना खल्फल इमाम। यही इसी जगह लिखा हुआ है तिरमिजी में, जहाँ पर ये पढ़ रहा है ना, एक सहाबी का कौल है, उसी के नीचे ये कौन लिखा हुआ है। सनद पेश करो। सनद तुमने कहा ना सनद नहीं है, तो सनद। अरे जब तू बोल रहा है ना, तुमने अहमद का इनकार किया ना, ठीक है, सनद है ही नहीं इनकार किया। मुझे जवाब तो देने दे, मुझे जवाब मेरे टाइम में तुम मत बोल, मेरे टाइम में तुम मत बोल। ये इमाम अहमद बिन हम्बल खुद अपने जो है ना फतवे से इनकार कर दिया, खुद जो फतवा दे रहे हैं दोबारा फिर कि नहीं इमाम को तो सूरह फातिहा पढ़ना है। अब तू जो बार बार चिल्ला रहा है इससे जाबिर बिन अब्दुल्ला मुराद है, अरबी हमको आता नहीं तो अरबी सिखाएगा, मुकल्लिफ खुद जाहिल होता है हमको अरबी सिखाएगा। बढ़ में उधर में आपके साथ रियान फुल तो एक दिन उसके डाल दूंगा भगवान। ठीक पर वो आज हाँ दे दूंगा। एक मिनट रुक जा भाई, मेरा काम आ गया, एक मिनट रुक जा, टाइम हुआ नहीं, रुक जा। अरे मेरे भाई, टाइम हुआ नहीं, 6 से तुमने रोका था 9 हो गया। टाइम हुआ नहीं, अभी बोलने टाइम हुआ नहीं। 6 से रोका था 9 हो गया। अभी खामोश रहो, अभी खामोश रहो। देखो सामईन, तुम्हारे जो है अरबी अशरफ अली थानवी आ जाए ना कबर से उठ के, उसको भी दलील होना पड़ेगा इस मसले पर, जान ले। दलाइल नहीं है तो बदतमीजी करेगा। बोल तो रहा हूँ, थानवी भी आ जाए कबर से उठ के तो वो भी अरे खामोश रहो। हाँ, ये 4:10 हो रहा है, खामोश रहो।